हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप लोगों के साथ मिलकर देखने के लिए आपके सामने मौजूद मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे सदगुरु की एक वीडियो है। बहुत ज़्यादा सजेशन में आ रही थी ये पिछले कुछ टाइम से। तो व्हाट इज द मीनिंग बिहाइंड द नेम भारत? बाय सात गुरु। तो क्या मतलब कोई हिस्टोरिक चीज है जैसे भारत? मुझे पाकिस्तान का वो स्पेसिफिकली पता है, जब बात करते हैं तो उसकी एक्सप्लेनेशन में बहुत लंबा ले जाते हैं, बहुत दूर तो तक मतलब बढ़ भारत की जाते भी हैं। हिस्ट्री कोई इसी ऐसी तरह से नाम के पीछे नाम के पीछे एक पूरी डिटेल हिस्ट्री होगी। मतलब ये जो नाम होते हैं बड़े सोच समझ के रखे जाते हैं बड़ी बड़ी चीजों के। मतलब इंडिया का तो आई होप कि इस वीडियो में कुछ क्लियर होगा। जैसे हम अक्सर सुनते हैं ना, अगर कोई भी इंटेलेक्चुअल इस्लामिक हिस्ट्री का या ओवरऑल हिस्ट्री का बैठा हो, स्पेसिफिकली मोस्टली इस्लामिक हिस्ट्री का जब कोई बैठा हो, तो वो अगर वर्ल्ड पाकिस्तान को एक्सप्लेन करने लगे तो बड़ी डेप्थ और बड़ी डिटेल में ले जाते हैं। मैंने सुना हुआ है इस तरह बहुत डिटेल में जाके कहाँ कहाँ ज्वाइन करते रहते हैं इसके हर एक वर्ड को, हर एक पार्ट को। तो मेरे ख्याल से इसी तरह का कुछ होगा। सो लेट्स सी। 1 2 3 गो। When we say Bharat or Bharata or Bharatam, we are not talking about nationalism. The word Bharat or Bharata has three components. Bha means sensation. When I say sensation, your whole experience of life is a sensation. Maybe not sensational, but it's a sensation. What you see, what you hear, what you smell, what you taste, what you touch, you only experience it as a sensation. As the basis of your current experience of life is essentially through the sense organs. Everything that you know as life is actually a sensation. Pain, pleasure, taste, smell, hearing, visual sensations, everything is happening as sensations. So this is the bha, or the fundamentals of your experience. Ra means raga, or the tune. The tune is not yours. The process of creation, the source of creation has a set a tune. You cannot set the tune is already set. Life is happening to a certain tune. Tha means the rhythm. This is yours. If you get the tala right, the raga is already set. The experience of life is happening. Everything that you see, everything that you hear, smell, taste and touch is creating waves of sensations. And it is happening to a certain tune. If you get the rhythm or the tala right, you will ride the raga. Life becomes beautiful. If you do not get the tala right, life will crush you. This is all the experience of life is. Those who got the rhythm right, they think in their experience life is a wonderful thing. Those who did not get the rhythm right, those who failed to get the right tala, their experience of life is misery. They feel crushed by everything around them. So this is not about nationalism, this is about setting a culture where everybody can find the right rhythm. But the same raga, there are a million rhythms that one can set. This is individual capability as to what kind of rhythm you're going to set. So this ancient culture, which goes back 12,000–15,000 years, focused on mastering as to how to set the right rhythm, how each human being, irrespective of who he or she is, how to set the right rhythm. There is no one rhythm.
All of us cannot dance to one rhythm. Everyone has to set his own rhythm. But it has to be in tune with the raga, otherwise they will get crushed by the process of life. It doesn't matter, you think you're a good man, you will anyway get crushed. It doesn't matter, you think you're bad, you'll get crushed. The whole world thinks you're bad, but you may be doing great because you got the rhythm right, you got your thala right, everything is fine with you. Seriously, I'm impressed. अच्छी बात कर रहे थे, समझ आई बातें? सारी नहीं आई। सारी नहीं। This was too deep to understand. सीरियसली इट वाज ट्रू। मतलब ये सिर्फ इंडिया के लिए नहीं था, ये एक लाइफ को एक्सप्लेन कर रहे थे वो। हर कोई इससे बेनिफिट हासिल कर सकता है। हाँ, मतलब वो जिस तरह का हम सोच रहे थे कि हाँ, वो हिस्टोरिकल वो चीज़ नहीं वो है, उस हिसाब से नहीं था ये, मतलब बड़ी डिफरेंट किस्म की बहुत बात। डिफरेंट, मतलब लाइफ को अंडरस्टैंड करवा रहे थे वो। लास्ट टाइम भी जब हमने वीडियो देखी थी ना, वो भी देख के मतलब 2 मिनट बंदा रुक जाता है, सोचता रहता है, सोचना मतलब शुरू काफ़ी गहरी बात करते क्या हैं। बात की है। मेरे जैसे इंसान को तो पहली दफ़ा में समझ नहीं आती, लेकिन काफ़ी हद तक इस दफ़ा आई अच्छा, है। जो लास्ट टाइम की वीडियो थी ना वो इजी, इससे ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड थी। ठीक है, तो वो बात जो है वो कुछ होता है ना, वो बंदे बातें दिमाग में रह जाती हैं, तो वो बात मेरे दिमाग में अटक गई और फिर मैंने उसे सोचना शुरू किया और उसको लाइफ में देखना शुरू किया, तो देवर राइट। मतलब काफ़ी हद तक मुझे बहुत सारी बातें बहुत अच्छी लगी और बड़ी इम्प्रेसिव लगी। और जैसे वो फोकस था कि कीप द लाइफ सिंपल, ठीक है, वो इस चीज़ पे फोकस था। जैसे वो उन्होंने एग्ज़ाम्स की बात की, आप एग्ज़ाम हो रहे हैं तो आप खाना बड़ा सिंपल कर दें, अपना लाइफस्टाइल सिंपल कर दें, तो आप फोकस ज़्यादा अच्छे से कर बॉडी को उसकी आदत रहती हाँ, है ना। तो वो उस हिसाब से इस तरह की जो बातें, वो जो टिप्स थी ना, वो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। वो मैंने थोड़ा अंदाज़ा लगाया अपनी लाइफ में कि अगर बंदा थोड़ा इंप्लीमेंट करके चलें तो दीज आर इम्पॉर्टेंट, डिफरेंस आता है लाइफ में ना। ये जो बातें हैं ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही मुझे अंडरस्टैंड। अच्छा, इसमें एक बात जो समझ आई है कि आप अपनी लाइफ को अगर, यार मैं समझाता हूँ जो मुझे समझ आई, तू रहने दे, पर कॉम्प्लिकेट करेगा। 3 कंपोनेंट्स हैं इस चीज़, आप लोग भी सारे समझे, ठीक है जी प्लीज, ओके। हम गोश हो जाए। अगर मैं कहीं गलत हुआ तो मुझे गाइड कर देना कमेंट सेक्शन में, गालियों के बगैर। ओके, लेट्स स्टार्ट। 3 कंपोनेंट है। पहले कंपोनेंट में सेंसेशन बताई गई है, मतलब जो ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया ना, सेंस ऑफ टच, फीलिंग, बाकी सारी चीज़ें। दूसरा कंपोनेंट है ट्यून, मतलब दुनिया में जो चीज़ कैसे प्रोसीड कर रही है, आप हो या ना हो इस दुनिया में, लेकिन सारी चीज़ें एक स्पेसिफिक टोन में चलती जा रही हैं। तीसरी चीज़ है रिदम। रिदम वो है आपके पर्सनल से रिलेटेड, आपने किस हिसाब से अपने आप को उस ट्यून में एडजस्ट करना है ताकि आप एक फ्लो के साथ बह सको। मतलब अगर आप उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में जाओगे तो यू विल बी क्रश्ड। आपने एक ऐसा रिदम बनाना है जो आप उस ट्यून के साथ वो कर रहा हो, कोइंसाइड कर रहा हो। मुझे यहाँ तक समझ बिल्कुल बात समझ आ गई। देखो हाँ, आई वाज राइट। ओके, लाइफ एक खास जैसे टाइम चल रहा है, ठीक है, और उस टाइम में आपका एक रोल है। अगर आप वो रोल प्रॉपरली प्ले कर रहे हैं तो आपकी लाइफ बड़ी स्मूथली चल रही है। और अगर आप अपने एक लाइफ के रोल से कहीं हिल रहे हैं, ठीक है, तो फिर ये आपके लिए भी डिस्टर्बिंग है। मतलब आप उस टोन में एडजस्ट नहीं कर पा रहे अपने आप को। सो दिस इज हाउ इट इज। वो कहते हैं हर इंसान का एक टाइम स्पैन होता है, लाइफ एक खास टाइम स्पैन के हिसाब से उसकी लाइफ चल रही होती है। आपको देखने में लगता है कि कोई इंसान ज़्यादा तेज़ चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, कोई आगे है, कोई पीछे है, बट नहीं, हर बंदा अपने एक लाइफ स्पैन रिदम के साथ चला। तो ये बात थोड़ी सी जो वहाँ से अंडरस्टैंड हो पाती तो मतलब हम लोग सदगुरु को समझने लग गए फर्स्ट अटेम्प्ट में। क्वाइट एन अचीवमेंट यार। नहीं, मैं इस चीज़ को ओके नहीं कहूँगा, अभी और टाइम लगता है थोड़ा। वही मैं कह रहा हूँ, हैरान हो रहा हूँ। So, लेकिन अभी ये हमारा एनालिसिस गलत भी हो सकता है, क्या पता। ये अंदाजा है हमारा। सो आप लोगों कमेंट का सेक्शन क्या में लगता है, क्योंकि आप बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो हमसे ज्यादा सुना होगा, जिन्होंने हमारे चैनल के इंटेलेक्चुअल लोग जरा हाजिर हो कमेंट सेक्शन में, अपना अपना फलसफा झाड़े। बिल्कुल, मैंने तो झाड़ दिया, पता नहीं ठीक है या गलत है। हाँ, इस तरफ आ गया और मैंने भी झाड़ दिया। सो आप लोग बताएं, आप लोग क्या सोचते हैं वीडियो के बारे में, आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें बताएं ये वीडियो कैसी लगी, और जो हमने जो भी उसके बारे में आप समझ जाएगी। हाँ, उसके बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके बताएं, और अपनी राय से बाकियों को भी मुस्तफीद करें, बेनिफिट फायदा दें। मतलब सदगुरु ही इज अ ग्रेट पर्सनालिटी। ही स्पीक्स, वो बात समझा रहे होते हैं तो अच्छे से समझ जा रही है, मतलब वे ऑफ
जो स्पीकिंग है वो बहुत स्मूथ है। ये मतलब बड़े कम आपको लोगों के अट्रैक्ट पास है। करता है अपनी तरफ, हाँ। जब वो बोल रहे होते हैं तो आप सुनना चाहते हो। ये बड़े कम लोगों में होता है, जो वे ऑफ स्मूथ स्पीकिंग है ना, ये बड़े कम लोगों में होता है। सो इसके बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और मजीद अगर कोई ऐसी वीडियो आप लोग देखें जो आपको लगता हो कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो हमें सजेस्ट करें, हम आपके साथ मिलकर देखेंगे कुछ और। खुदा हाफिज़। ओके।